Good morning to all of you. Today we will study about the mammary gland and some the topic about the pregnancy and fetus development and the time of delivery. Yeah, we will study about this all. But first of all, the mammary gland. What is mammary gland? First of all, mammary gland is present in both in male and female, but it is active and female. Yes, the mammary gland is present in both male and female, but actively secreting milk and producing milk in female. And it is pad gland. Yes. Now you can see the structure of mammary gland. Mammary gland, you can see the ribs because it is present in our thorax region. Yes, and it is muscle between ribs, you can see. Then it is pectoral major muscle. This is not the topic of mammary gland, but the connection of mammary gland in thorax region by this type of muscles. Now, first and main points, the mammary gland, you can see in this structure that 15 to 20 lobes are present in this mammary and the mammary lobes, it is called a mammary lobe. 15 to 20 lobes are present. You can see in this mammary lobe, there are alveoli. There are many alveoli present in this all the lobe. And this alveoli, the function of this alveoli is to production of milk and the storage of milk. And this alveoli secrete this milk into this tubule. It is called a mammary tubule. You can see it is mammary tubule. Different mammary tubule from different alveoli will secrete the milk in mammary duct. This is the mammary duct, means connection of many mammary tubule. It is called a mammary duct. यहाँ पे आपको सीक्वेंस कंपल्सरी याद रखनी पड़ेगी बिकॉज सीक्वेंस इज मेन या mammary duct. Now mammary duct of different lobe. Mammary lobe कितने हैं 50 to 20, 15 to 20. तो from each mammary lobe the mammary duct will join and will make the little large portion. It is called a mammary ampulla. It is large little with compared to mammary tubule or mammary duct, and it is called a mammary ampulla. The large portion from all these duct, it is called a mammary ampulla. And you can see it is joined with lactiferous gland, and lactiferous gland is sucked out the total milk from mammary ampulla. Yes, mammary ampulla will remove milk in lactiferous gland. Extra, you know what is and why the lactiferous gland is in this mammary gland? No, okay, fine. I will tell you. There is no information about this duct in your book, but the lactose sugar, lactose sugar is secreted, and lactose sugar is mixed in milk. So lactiferous gland's function is to add lactose sugar in milk. Yes, friends. So now you can see the basic structure that it is called a nipple. Then some connective tissue are also present surrounding the mammary gland, but it is not written. So it is mammary gland and alveoli से लेके यहाँ पे हर एक की सीक्वेंस याद रखो. Mammary lobes, mammary tubule, mammary duct, mammary ampulla, and last में lactiferous gland. Okay. Now we will study about the pregnancy and embryonic development. Pregnancy and embryonic development. Now I will rub some portion from board. Wait a moment. Where is my duster? Okay. I will use now you have to remember the topics we
which was I told you about the ovulation, about the oogenesis, right? So, what is pregnancy and what is embryonic development? Yesterday we study about fertilization and development. That यहाँ से हम start करेंगे. It is ligaments, it is ovary, and it is the oviduct. Yes, we study oviduct. How many centimeter of length in oviduct? Yeah, very good. 10 to 15 centimeter. In some reference book, there is 10 to 12 centimeter. Okay, 10 to 15 or 10 to 12. जो आपकी रेफरेंस बुक एनसीईआरटी बुक में जो है वो आपको याद रखना. Now, the FSH was responsible for Graafian follicle, and due to FSH in Graafian follicle, it is Graafian follicle. In Graafian follicle, secondary oocyte was formed, and after then it is in between 16 to 14 day. After then 14th day, the LH was responsible for ovulation, and this was the secondary oocyte. Now it is the corpus luteum. Corpus luteum. And corpus luteum phase. It is for 15 to 28 days. यहाँ पे जो मेन पॉइंट मैं जो बोलने चाह रहा हूँ वो परफेक्टली याद रखो कि 15 टू 20 डे में जो कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में है, अगर यहाँ एक्सेल सेकेंडरी oocyte है, इस केस आफ्टर दिस मंथ द सेकेंडरी oocyte will remove, and with this secondary oocyte the endometrium which was developed by estrogen which was secreted by Graafian follicle, and endometrium also developed by progesterone, yes, which was secreted by corpus luteum. This endometrium will degrade, and this endometrium will degrade, and 50 to 150 ml blood is also lost. Yeah, and now in presence of sperm cell, what will occur? पहले हमने समझा इन एब्सेंस ऑफ स्पर्म सेल क्या होगा, तो मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा, एंड यहाँ लास्ट में क्या होगा, तो कॉर्पस लुटियम है वो डिग्रेड हो जाएगी. यहाँ ये लिख रहा हूं मैं इन लैक, यानी इन एब्सेंट ऑफ स्पर्म सेल, इन एब्सेंट ऑफ स्पर्म सेल, ये मेन पॉइंट है. कॉर्पस लुटियम विल डिग्रेडेड, ये टॉपिक पहले मैंने लिया है, बट उसका कनेक्शन ये आज के टॉपिक के साथ करना है. सो हम यहाँ पे जाएंगे, और कॉर्पस लुटियम जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे. क्यों? इन लैक ऑफ स्पर्म सेल या इन एब्सेंट ऑफ स्पर्म सेल, एंड अगेन नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा. बट यहां अब टर्निंग पॉइंट आएगा. क्या? इन प्रेजेंस ऑफ स्पर्म सेल, अगर यहां पे स्पर्म सेल होगा तो सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 होगा, लार्ज एंड स्मॉल सेल. याद करो, larger cell is called the ovum cell, and OOTD, it is also called the OOTD. ovum cell plus sperm cell. यहाँ पे हमने देखा था इथमस एम्प्यूला, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इथमस एम्प्यूला रीजन पे. नाउ द जाइगोट विल फॉर्म्ड फ्रॉम दिस जाइगोट यानी फर्स्ट सेल. 2 cells were formed, 4, 8, 16. This was the cleavage process. Now, the cells which are formed from zygote, they are called blastomere. याद होगा आपको blastomere. Continue. And 8 and 16 is called a morula stage. Morula. याद रखो morula stage. Now, अब यहाँ जो ओविडक्ट या फैलोपियन डक्ट है, वहां से यूट्रस में क्या आएगा, तो 16 स्टेज्ड ब्लास्टोमियर. 16 स्टेज ब्लास्टोमियर will enter into the uterus side. Now
the continuous cell division is in blastomere. So it will become blastocyte. Blastocytes, याद रखो. And in this blastocyte, there are two regions. The outermost region of blastocyte is called a trophoblast. Trophoblast is our today's topic. And trophoblast and inner cell mass is inside. Yeah, inner cell mass is present and you can see is inside. Trophoblast is outermost, and function of trophoblast, I told you that it is nourishing the inner cell mass, giving some food material. And trophoblast will also secrete some enzyme. Due to this enzyme are degrading enzyme. Due to this enzyme, the some tissue of endometrium will degraded. And now what will occur? And this trophoblast will make finger-like structure. Yes, trophoblast will make finger-like structure. Yeah, you can see in this figure, it is finger-like structure. Now, what is finger-like structure? It is called a chorionic villi. Chorionic villi. तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड अ कॉरियोनिक विली. नाउ आपको समझना ये है कि कॉरियोनिक विली विल make highly connection with this uterine wall. Yeah, uterine wall and chorionic villi both will connect with highly and it will called a placenta. Yes, then what is placenta? What is placenta? Chorionic villi plus uterine wall will make placenta. यस फ्रेंड्स, याद रखना है. कई स्टूडेंट्स नीट क्लियर कर देते हैं प्लेसेंटा क्या है, प्रॉपरली नहीं याद रहता. याद रखना है, समझ के रट्टा लगाओगे तो 2-5 दिन में या मंथ में भूल जाओगे. व्हाट इज प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा इज अ chorionic villi of this trophoblast and the uterine wall is the high connection is called a placenta. Very useful hormone are secreted from this placenta. Very useful hormone like estrogen, progesterone. Yes, आपको तुरंत हुआ होगा कि estrogen, progesterone तो ये भी आए थे. तो yeah, it is secreted from ovary also and the from placenta. Which one? Estrogen. Then progesterone, estrogen, progesterone. And now the placenta is mainly useful in secretion of HPL. What is HPL? Then HCG. आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ओके, शायद नहीं दिखाई दे रहा. ओके, चलो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा. ओके, प्लेसेंटा दिखाई दिया. ओके, वो भी नहीं. चलो, ओके, प्लेसेंटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है. पहले ऊपर भी स्पेस है. चलो पहले यहाँ लिख देते हैं कि व्हाट इज प्लेसेंटा. व्हाट इज प्लेसेंटा, ये बात यहाँ पे समझ लो. तो व्हाट इज प्लेसेंटा यहाँ पे तो दिखाई देगा. ओके फाइन. प्लेसेंटा मीन्स यूट्राइन वॉल प्लस chorionic villi. What is chorionic villi? Chorionic villi is the modification of trophoblast. Okay, why chorionic villi is required? Why this placenta is required? Because implantation proper हो and implantation इससे भी proper बने, इसलिए यहाँ placenta में से HCG यहाँ पे secrete होगा. HCG for human chorionic gonadotropin hormone. Human chorionic gonadotropin hormone. It is the function, yes, it is giving strength and proper implantation. The HCG is required. It is main and it is you cannot found this point in your book, but it is
from Google. There is no information about HCG, HPL, even in RLS, even in Pradeep GRB book. There are lots of book, Disha publication, but you have to know because just नीट क्लियर कर लिया यू नहीं होगा इन मेडिकल फील्ड there should be compulsory that information about HCG you have to and now HCG then HPL what is HPL first human placenta आपको दिखाई देता है okay yeah human placental lactogen I will give information here human placental lactogen first it is also not given in your book but what is human placental lactogen it is as same as functioning like a GH जो GH है ग्रोथ हार्मोन है उसके जैसा ही फंक्शन करेगा या डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ fetus yes and the main function of HPL is giving energy to fetus. Yeah, it is giving energy to fetus. And HPL is the hormone which is called anti-insulin. Anti-insulin. Why it's called anti-insulin? समझना है आराम से. Why it's called anti-insulin? What is glucagon? What is insulin? एक बार repeat कर लो. 22nd chapter, 11th standard. We studied about that. What is insulin? Remember, glucagon. What is glucagon? Glucagon is useful to absorb glucose in blood from digestive tract. For example. Now, what is insulin? Insulin is responsible for the glucose uptake into the cell. Okay, now it is एंटी इंसुलिन यानी जो ग्लूकोज है उसको ब्लड में से बॉडी में टिश्यू में वो अपटेक नहीं होने देगा क्यों क्योंकि मदर में जितना ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा उतना फिटस में जाएगा उतना एनर्जी फिटस को ज्यादा मिलेगी तो इट इज द फंक्शन ऑफ HPL human placental lactogen so estrogen progesterone then HCG HPL these are secreted by placenta and these are the function of HPL also in HCG and last hormone which is the relaxin hormone what is relaxin hormone I will tell you what is relaxin and from it is secreted अभी हमने बोला था अभी मैंने बोला था कि ये कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड क्यों होगा क्यों तो in absent of sperm cell in absent of sperm cell corpus luteum degrade हो गया after 28th day after 1 month again the secretion phase then 5 to 14 day then 16 या 15 to 20 day again corpus luteum will degrade but in presence of sperm cell fertilization occurred then embryonic development occurred 1 month 2 3 4 5 6 7 8 9 9 month तक यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का डिग्रेडेशन नहीं होगा यहाँ पे आपको फोकस करना है और याद रखना है कॉर्पस ल्यूटियम in absent of sperm cell were degraded but in present of sperm cell corpus luteum remains till delivery time why corpus luteum maintained for 9 months 8 months or 10 months yes उसका रीजन है कि आफ्टर डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द corpus luteum will secrete relaxin hormone. Relaxin hormone is secreted by corpus luteum. The function of relaxin, yeah, हमने कल देखा था the region it is called a uterus. It is uterus and उसके नीचे यूट्रस के नीचे कौन सा रीजन है तो हमने देखा था सर्विक्स एंड उसके नीचे क्या था याद करो यस गुड नाउ
द यूट्रस एंड cervix, अभी फोकस करना है cervix पे. देन वेजिना पे फोकस नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन cervix. तो यहाँ पे बेबी क्रिएट हो गया है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, हमने देखा था कैसे मेल कैसे फीमेल प्रीवियस लेक्चर में. तो आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ दिस बेबी बॉय और बेबी गर्ल, इट विल, जो कैरविक्स है उसका क्या होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, और कैरविक्स का रिलैक्सेशन होगा, और उसकी वजह से ये जो बेबी है वो यहाँ से इजीली डिलीवर हो जाएगा. तो इट इज द फंक्शन ऑफ रिलैक्सिंग. ओके फ्रेंड्स, नाउ द वी, इतना टॉपिक जो है ना वो परफेक्टली एक बार फोकस कर लो, रिवाइज कर लो. देन एक दो पॉइंट है लास्ट में, 5-10 मिनट के टॉपिक है, बाकी बाकी आपने टोटली कवर कर लिया. देन उसके बारे में बोलूँगा, लाइक मैमरी ग्लैंड. तो मैमरी ग्लैंड के बारे में तो मैंने बोल दिया, द स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड. बट आफ्टर delivery, mammary gland is also secreting the milk. Yes, why? ड्यू टू, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो देयर इज ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग डिलीवरी, ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम. इट इज ऑल्सो नॉट रिटन इन योर बुक. तो कॉर्पस ल्यूटियम के कितने फंक्शन हो गए, दो. रिलैक्सिन भी सिक्रेटिंग करेगा, प्लस प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेटिंग करेगा. ओके, याद रखना है. क्यों? मिल्क मिल्क इजेक्शन के लिए, यस, मिल्क सिक्रेशन के लिए. सेकंड, why milk is essential for a fetus or child? Why? Because the antibody are present. Antibody, which antibody? Antibody IgA. मिल्क में क्या होता है पता है? कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम. एंड कोलेस्ट्रम में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है? कोलेस्ट्रम. एंड कोलेस्ट्रम में क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए. क्योंकि जो चाइल्ड है, बेबी है, उसको इम्यूनिटी ज्यादा चाहिए, तो IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए. कोलेस्ट्रम इज प्रेजेंट इन मिल्क. सो रिस्पॉन्सिबल इज प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो इन द लिस्ट बनाओ, और जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें लिख देना है ऊपर जहां भी स्पेस हो. ओके, नाउ द main three which hormone are only secreting during this pregnancy. तो HPL, HCG and relaxin is only three hormone which are secreting only during pregnancy. ये एक MCQ में गुजकेट के एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन 2 या 3 ईयर बिफोर. यस, फिर से रिपीट करो, क्या? HCG, HPL and relaxin. These three hormone are secreted ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब ये कोई नई बात नहीं है, वो तो इजीली याद रहेगा. क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही HPL की रिक्वायरमेंट है, HCG की रिक्वायरमेंट है, एंड रिलैक्सिन की रिक्वायरमेंट है. बाकी विदाउट इन देयर आर मैनी हार्मोन यू विल फाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड विच हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस, फर्स्ट ईस्ट्रोजन, वो आपको पता है. प्रोजेस्टेरोन, वो आपको पता है. थर्ड वन एक याद करवा दो आपको, प्रोलैक्टिन हार्मोन. या प्रोलैक्टिन हार्मोन याद करो. एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से क्या निकला था? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन. याद करो, प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसको PH भी बोलते हैं और PLH भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन. And function of prolactin hormone, you know, right, since 6 months, because prolactin hormone is useful for milk secretion from mammary gland. Yes. Another, the hormone is cortisol. कॉर्टिसोल, आपको होगा कॉर्टिसोल कैसे? तो स्टूडेंट याद रख लेते हैं, बस ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, रट्टा लगा दिया, नहीं चलेगा. कॉर्टिसोल, when and where you study about cortisol, तो आपको बोल देता हूं कि भाई कॉर्टिसोल है, याद करो, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स हमने स्टडी किया था उसमें. और एड्रिनल कॉर्टेक्स में कितने लेयर थे पता होना चाहिए? 3 लेयर. आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल इज कॉल्ड जोना फैसिक्युलेटा, हमने बोला था बीच में फंसा हुआ फैसिक्युलेटा,
एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट हुआ था। जोना फेसिक्यूलेटा में से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट हुआ था, याद आना चाहिए। उसका अभी कोई फंक्शन नहीं है, बट मेन कॉर्टिसोल कहां से, तो जोना बीच का फेसिक्यूलेटा एंड रेटिक्युलरिस। फेसी प्लस रेटी, मैंने बोला था कि फेसी प्लस रेटिक्युलरिस दोनों में से क्या निकला था, सेक्स कॉर्टिकॉइड। याद करो, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यहां पे निकले थे। ये सेक्स कॉर्टिकॉइड क्या करेगा, तो मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट से लेके कई सारे जो फंक्शन थे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेनिफिशियल थे, वो यहाँ पे करेगा। तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, देन कौन सा बोला, कॉर्टिसोल, यस याद रखना है। Then even thyroxine is also useful, and these are the hormone which are useful during pregnancy. And आपको पता होना चाहिए कि during embryo development there are the three layer differentiated. Yes, outermost ये मैंने आपको बताया था एनिमल किंगडम, 11th स्टैंडर्ड याद करो। एनिमल किंगडम का फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने बोला था, यूट्यूब पे है, याद करके, याद ना है तो आप देख सकते हो। उसमें क्या था, स्किन बनी, स्किन किसके थ्रू बनी, एंडो के एक्टो, एक्टो वेरी गुड। ऑर्गन 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 सिस्टम किससे बनी, एंडोडर्म। थ्री लेयर है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के थ्रू थ्री लेयर बने थे। स्किन आउटर मोस्ट एपिथेलियम टिश्यू इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्टोडर्म। ऑर्गन किससे बने, एंडोडर्म। एंड मसल्स एंड बोन, these are the development and differentiation of mesoderm. So these three layer is also developed during pregnancy and embryonic development. And the during fetus याद रखना है आपको कि जो fetus होगा उसका यहाँ पे इजेक्शन रिफ्लेक्शन में, fetus इजेक्शन रिफ्लेक्शन में आपको याद रखना है कि जो एम्ब्रियो है उससे क्या होगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है सो मैं कहाँ लिखूँ ये सोच रहा हूँ। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्शन में ऊपर लिख रहा हूँ कि फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी क्या, तो ये फीटस जो है जो डेवलप हो रहा है वो आफ्टर 8 मंथ और 8.5 मंथ, अदरवाइज 9 मंथ, वो टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं होता। तो वो कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, उसके बाद यहां से क्या निकलेगा, फीटस में से निकलेगा ओटी, याद रखना है, ओटी फॉर ऑक्सीटोसिन, याद रखो, ओटी फॉर ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन। ऑक्सीटोसिन आपने पहले स्टडी किया है 22nd में, 22nd चैप्टर में, याद करो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलेगा। तो वो कब और क्यों निकला, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो है, डेवलप एम्ब्रियो, वहां से ये फीटस है, वहां से ओटी निकला, तब जाके वो इंफॉर्मेशन पिट्यूटरी ग्लैंड को मिली। यस, इसीलिए ये न्यूरल एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन तो है क्योंकि हार्मोन 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 निकलते हैं, बट यहां से हार्मोन क्यों निकला, एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो यूट्रस में है, तो यूट्रस का कनेक्शन ऊपर, यस, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू हुआ। तो क्या समझा, यहां फीटस में से ओटी निकला, फीटस का ओटी ऑक्सीटोसिन will give information by nervous system to posterior pituitary gland, and OT will secreted from this posterior pituitary gland. Now from this posterior pituitary gland क्या होगा समझना है आपको, वो ऑन द स्पॉट अगेन ये एम्ब्रियो या फिटस में से ओटी को सिक्रेट करेगा, एंड नाउ फ्रॉम प्लेसेंटा या प्रोस्टाग्लैंडिन विल सिक्रेट, यहाँ पे स्पेस नहीं है सो मैं लिख रहा हूं क्या, हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ओटी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों का सिक्रेशन, दोनों का लेवल ब्लड में काफी इंक्रीज हो चुका है, एंड नाउ द वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस विल अकर। ये इंफॉर्मेशन बुक में नहीं है ओटी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की,
याद रखना है आपको। 22 में था ओटी, बस वही, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, याद रखना है फ्रेंड्स। यस गुड। ओटी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का एक लेवल बन जाएगा ब्लड में, देन ऑन द स्पॉट वहां पे क्या होगा, तो जो रिफ्लेक्स है वो यहाँ पे मिलेगा, फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ओके, ये क्लियर करना है। एंड यहाँ पे आपको याद आना चाहिए, दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड पार्चुरेशन, राइट। तो अभी स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा, बट आपको याद रहना चाहिए क्या, पार्चुरेशन, याद रखो। एंड यहाँ पे कैसा डेवलपमेंट होगा और कैसे कैसे कौन से मंथ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये भी स्पेस है नहीं, बट यहाँ लिख देते हैं, चलो ओके। याद रखना है कि फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ पे क्या हुआ, तो जो हार्ट है उसका फॉर्मेशन हुआ, यानी डिफरेंशिएशन हुआ। यस, हार्ट डिफरेंशिएशन, हार्ट फॉर्मेशन, एंड by stethoscope you will found the heartbeat. Yeah, you can listen the heartbeat on first month. Now, and the second month, the limbs and digits, limbs and the finger yani digits you will found at the second month. And after then थर्ड मंथ, यानी हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर इट इज कॉल्ड द थर्ड मंथ। एंड थर्ड मंथ यानी 12th वीक, क्योंकि यहाँ ट्विस्ट कर सकते हैं 12 आफ्टर 12 वीक, क्योंकि एक मंथ में कितने वीक आएंगे, 4, तो यहाँ पे थर्ड मंथ यानी 12 वीक बोल सकते हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर बोल सकते हैं। द ऑर्गन सिस्टम विल डेवलप लाइक अ किडनी, ब्रेन सिस्टम, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब डेवलपमेंट हो जाएगा। देन आफ्टर द फिफ्थ मंथ फर्स्ट मूवमेंट विल फाउंड, या आपने सुना है कि बेबी ने लात मारा, कई सारी एडवर्टाइजमेंट में बेबी ने लात मारा, तो लात मारा यानी फर्स्ट मूवमेंट यू विल फाउंड इन फिफ्थ। एंड यू विल आल्सो फाउंड हेयर ऑन हेड, you will find. Now after 6th month यानी how many week, 24 week यानी 6th month के बाद यहाँ पे जो बॉडी है वो टोटली कवर हो जाएगी बाय हेयर, बॉडी विल कवर्ड बाय हेयर। एंड ऑल्सो द आईलिड सेपरेटेड, जो आईलिड है वो सेपरेट हो जाएगी, आईलिड विल सेपरेटेड। यस, बॉडी विल कवर्ड बाय हेयर, देन आईलिड जो है वो सेपरेट हो जाएगी। एंड द आई लैसिस फॉर्म, आई जो लैसिस है वो फॉर्म होगा। आई लैसिस तो आपको पता है, जो आप बोलते हैं कि भाई ये आईब्रो, राइट, पाम, तो ये आई लैसिस विल फॉर्म। एंड आफ्टर 8-9 month the delivery time, so it is called a fetus ejection reflexation. Now आपको ये पॉइंट जो है 2 बार रीड करने हैं, 2 बार सुनने हैं और मेरे को लिख के सेंड करना है। और इसमें से मोस्टली 3 पॉइंट हुए, कौन से फर्स्ट एक पॉइंट फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है आपको समझना है, बुक में देखना है, डाउनलोड कर दो, इतना ही लिखोगे, NCERT 12th बायोलॉजी आ जाएगा, चैप्टर नंबर 3। सेकंड शॉर्ट नोट लिखने, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड थर्ड पार्चुरेशन, जो मैंने लिखा नहीं अभी, स्पेस नहीं है, तो पार्चुरेशन। तो ये तीनों शॉर्ट नोट लिख के दिखानी है, कोई भी कहाँ से भी आ सकती है बोर्ड में एग्जाम। ये ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आता कई बार, ठीक है। तो 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। देन हर एक में से 3 टॉपिक हुए, हर एक में से 2-2 MCQ, यानी टोटल 6 to 8 क्वेश्चन MCQ सेंड करके दिखाओ। ओके, थैंक यू।